Hello everyone. Now in our soil mechanics, today we are going to see our first chapter compaction. आज हम देखेंगे soil mechanics में अपना पहला चैप्टर compaction. So first of all, what is compaction? Compaction किसे बोलते हैं? So compaction is a process by which soil particles are artificially rearranged and packed together into closer state of contact by mechanical means in order to decrease the void ratio or a porosity of the soil and thus increase its dry density. तो first of all compaction क्या है? We all know that three phase diagram of the soil. बराबर है? क्या आप लोगों को पता है कि थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल क्या होता है? थ्री फेज डायग्राम लाइक दिस. जैसे कि हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है तो सॉइल सैंपल के अंदर क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल हो गए, देन वाटर होगा एंड एयर कंटेंट होगा. ठीक है, दिस इज द थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल. બરાબર છે. આ શું કહેવાય છે? થ્રી ફેઝ ડાયાગ્રામ ઓફ ધી સોઇલ. બરાબર છે. તો કોમ્પેક્શન શું છે? વોટ ઇઝ ધ કોમ્પેક્શન? કોમ્પેક્શન क्या है? So it is a process by which soil particles are artificially rearranged and packed together into closer state of contact by mechanical means in order to decrease the void ratio or porosity of soil and thus increase its dry density. બરાબર કે સપોઝ આપણી પાસે કોઈ સોઇલ સેમ્પલ છે. બરાબર, આ રીતનો સોઇલ સેમ્પલ છે. એમાં શું હશે? સોઇલ પાર્ટિકલ હશે. બરાબર છે. એની અંદર શું હશે? સોલિડ પાર્ટિકલ્સ, ધેન એર હશે. બરાબર છે. વોટર હશે. આ બધું ઇન્ક્લુડ હશે. બરાબર છે. તો કોમ્પેક્શન મતલબ શું કે કોઈ બી સોઇલ પાર્ટિકલની અંદર એર કોન્ટેન્ટ છે. બરાબર છે. એને રિમૂવ કરીને એની ડ્રાય ડેન્સિટી વધારવાની છે. બરાબર, મિકેનિકલી. બરાબર છે. તો એને શું કહેવામાં આવશે? કોમ્પેક્શન. બરાબર છે. કે કોમ્પેક્શન એટલે આર્ટિફિશિયલી રિઅરેન્જ. બરાબર છે. કે કોઈ ઇરેગ્યુલર સોઇલ પાર્ટિકલ હોય છે. બરાબર છે. આ રીતે સોઇલ પાર્ટિકલ એમાં એર હશે તો એને આર્ટિફિશિયલી એને ભાર આપીને શું કરવાનું છે? એર ફ્રી કરવાનું છે. સોઇલ પાર્ટિકલને એર ફ્રી કરવાનું છે. બરાબર, કોઈ મિકેનિકલ ટૂલ યુઝ કરીને અને એનું ડ્રાય ડેન્સિટી વધારવાની છે. એને એટલે શું કહે છે? કોમ્પેક્શન. સો ઇટ ઇઝ આર્ટિફિશિયલી રીઅરેન્જ packed together into closer state of contact by mechanical means in order to decrease the void ratio of the soil and thus increase its dry density. It is called compaction. બરાબર છે. So the compaction process may be accompanied by rolling, damping અને vibration. चलो, compaction हम कैसे कर सकते हैं? सो रोलिंग, डैम्पिंग एंड वाइब्रेशन. सो आप लोग को जानते हैं कि जैसे कि कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है या हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सो मिट्टी डालते हैं. एट दैट टाइम क्या है? रोलिंग प्रोसेस होता है. वो किसके लिए होता है? कि जो सॉइल के अंदर एयर कंटेंट है उसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है. ठीक है. देन टैम्पिंग, जैसे कि हम कोई मैकेनिकल रॉड लेके उसको सॉइल को टैम्प करके उसको एयर फ्री कर सकते हैं. और वाइब्रेशन सेम होगा. सो air during compaction is expelled from the void space in the soil mass and therefore the mass density is increased. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? हम उसमें से सॉइल पार्टिकल में से एयर रिमूव करेंगे. सो उसकी क्या इंक्रीज़ होगी? मास डेंसिटी. ऑब्वियसली जैसे कि कोई सॉइल सैंपल है लाइक दिस, कि ये कोई सॉइल सैंपल है तो उसके अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एयर होगा, देन सॉलिड पार्टिकल होगा. सो हम उसको टैम्पिंग करेंगे या रोलिंग करेंगे तो क्या होगा? ये एयर पार्टिकल है ये क्या होगा? रिमूव हो जाएगा और केवल सॉलिड पार्टिकल रह जाएगा. तो क्या करेगा? कॉम्पेक्शन सॉइल की मास डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा. जो ये ओनली सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, तो उसकी जो मास डेंसिटी है उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा, इंक्रीज़ करेगा. सो दिस इज़
in compaction. So compaction of soil mass is done to improve engineering properties. ये क्या करेगा, compaction soil mass की engineering properties को improve करेगा. So compaction is to remove air content from soil particle. ठीक है, कि सॉइल पार्टिकल के अंदर जो कोई भी एयर कंटेंट है उसको रिमूव करना है बाय रोलिंग, टैंपिंग और वाइब्रेशन. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट कंसोलिडेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन. सो व्हेन द सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड सॉइल किसे बोलेंगे कि ये फुल्ली सैचुरेटेड, कि सपोज कोई सॉइल सैंपल है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, 3 फेज डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि एयर कंटेंट होगा, वाटर कंटेंट होगा एंड सॉलिड पार्टिकल हो गए. तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में ओनली क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल एंड वाटर. So this soil sample is called fully saturated soil. So when soil is fully saturated, compression of soil occur mainly due to expulsion of water from the voids under a static pressure. जो soil particle है fully saturate, उसको हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है. सो हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर का एक्सपल्सन होगा. ठीक है, बाहर पानी आएगा, सॉइल के पार्टिकल में अंदर जो पानी है वो बाहर आएगा ड्यू टू स्टैटिक प्रेशर. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसोलिडेशन. के सब ये सॉइल पार्टिकल्स है, दिस इज सॉलिड पार्टिकल, सॉइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल एंड दिस इज़ वाटर. अब क्या करेंगे, हम उसको हम स्टैटिक प्रेशर देंगे अपर में से, तो क्या होगा, जो ये वाटर है उसका क्या होगा, एक्सपेल्सन होगा, वो बाहर आएगा. ठीक है, तो बाहर आएगा एंड जो सॉलिड पार्टिकल है वही रहेगा. ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन. तो व्हेन द सॉइल इज़ फुली सैचुरेटेड, compression of soil occurs mainly due to expulsion of water from the void under static pressure. So this process is called consolidation. So compaction क्या है, कि जो सॉइल पार्टिकल्स है उसमें से हमें एयर कंटेंट है, वॉइड्स है, उसे हमें रिमूव करना है बाय रोलिंग, टैंपिंग एंड वाइब्रेशन से. एंड कंसोलिडेशन में क्या करना है कि जैसे कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसको हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, स्टैटिक प्रेशर, एंड उसमें जो वाटर है उसको क्या करेंगे, एक्सपल्सन करेंगे. सो इट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल. सो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन. नाउ नेक्स्ट, in a consolidation, due to escape of water, the solid particles shift from one position to another position by rolling and sliding, thus attain a closer state of packing. सिंपली हम जो कंसोलिडेट करें, स्टैटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉइल प्रेशर पे, सॉइल पार्टिकल पे, वाटर एक्सपल्सन होगा, तो ऑब्वियसली जो सॉइल के पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल है, वो एक दूसरे के नज़दीक आएगी, क्लोज आएगी बाय रोलिंग एंड स्लाइडिंग एंड अटेन अ क्लोजर स्टेट ऑफ पैकिंग, एक दूसरे से नज़दीक आएगी. सो इस इज इंक्रीज द मास डेंसिटी. A study of consolidation is extremely useful for forecasting the magnitude and the time of the settlement of the structure. So it is a very most important topic, compaction and consolidation. Next, difference between compaction and consolidation, very most important topic for a G2 examination. The difference between compaction and consolidation. So first is compaction and consolidation. So compaction is a process by which soil particles are artificially rearranged and packed together in a closer state of a contact by mechanical means in order to decrease the void ratio and increase its dry density. क्या करना है, जो सॉइल सैंपल है उसमें से एयर कंटेंट रिमूव करना है बाय रोलिंग, टैंपिंग एंड वाइब्रेटिंग, and it increase its dry density, so it is called compaction.
बराबर। देन नेक्स्ट कंसोलिडेशन में क्या करना है, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, उसको हम स्टैटिक प्रेशर अप्लाई करके उसमें पानी बाहर निकालना है। सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। व्हेन द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, compression of soil occurs mainly due to expulsion of water from the voids under a static pressure. This process is known as consolidation. ठीक है। कॉम्पेक्शन में क्या करना है, हमें एयर कंटेंट रिमूव करना है, कंसोलिडेशन में वाटर रिमूव करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट, इन कॉम्पेक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम वॉइड्स। ठीक है। कि कॉम्पेक्शन में क्या करना है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है सॉइल मास का एंड एयर रिमूव कम करना है। ऑब्वियसली हो जाएगा, एयर रिमूव होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। इन कंसोलिडेशन डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दी वॉइड्स। सो आप देख सकते हो 3 फेज डायग्राम, कॉम्पेक्शन एंड कंसोलिडेशन। सो कॉम्पेक्शन में आप देख सकते हो कि 3 फेज डायग्राम में क्या आएगा, सॉलिड, वाटर एंड एयर। ठीक है। देन हम कॉम्पेक्शन करेंगे, एयर रिमूव होगा, सो वॉल्यूम चेंज होगा V1 टू V2। सेम एज कंसोलिडेशन, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, सो इन दिस सॉइल पार्टिकल ओनली सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर होगा, सो वॉल्यूम V1। देन हम कंसोलिडेट करेंगे, एट द टाइम वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। सो in a compaction the load is dynamic because we apply rolling and vibrating, so load is dynamic and the load is static. Consolidation में क्या होगा, load is static. In a compaction the process of compaction is a rapid, it's a rapid। ठीक है। रोलिंग करेंगे, टैम्पिंग करेंगे, वाइब्रेशन, तो मैकेनिकल टूल यूज हो गए, सो इट इज़ रैपिड, बराबर फास्ट प्रोसेस है। एंड कंसोलिडेशन इज़ वेरी स्लो। So in a compaction is an artificial process which is done to increase density of soil। क्या करना है, हमें सॉइल की डेंसिटी को बढ़ाना है। In consolidation it is a natural process in which the saturated soil deposits are subjected to static load caused by the weight of the building or other structure। ठीक है। कंसोलिडेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा, ये क्या मिट्टी पे होगा, सॉइल में होगा, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा, उस पर हम क्या करेंगे, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर वन टाइप ऑफ स्टैटिक लोड बन जाएगा। वो मिट्टी पे लोड एक्ट होगा तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। सो दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस। So in a consolidation is a natural process in which the saturated soil deposits are subjected to static load caused by the weight of the building and other structure. So in a compaction soil is a partially saturated। ठीक है। ड्राई सॉइल होगी, सॉलिड वाटर एयर कंटेंट होगा, सो इट इज़ पार्शली सैचुरेटेड, 50% होगी। एंड देन इन कंसोलिडेशन इट इज़ अ फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, 100% सैचुरेटेड होगी। सो इन अ कॉम्पेक्शन इट इज़ ऑलमोस्ट इन इंस्टेंटेनियस फिनोमिना। ठीक है। एंड कंसोलिडेशन इज़ डिपेंडेंट फिनोमिना, क्योंकि ये स्टैटिक लोड आएगा, एडेट होगा, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सो इट इज़ डिपेंडेंट फिनोमिना कंसोलिडेशन, एंड कॉम्पेक्शन इज़ इंस्टेंटेनियस फिनोमिना। सो इन अ कॉम्पेक्शन applies to cohesive as well as cohesionless soil। so cohesive यानी कि तो सॉइल पार्टिकल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है। जो सॉइल मिट्टी के पार्टिकल है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, वो रिजिडली कनेक्टेड हो गए, इट इज़ कोहेसिव सॉइल। एंड कोहेशनलेस सॉइल मतलब जो पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, वो एक दूसरे से अलग अलग छुट्टे हो गए, सो इट इज़ कोहेशनलेस सॉइल। For example, cohesionless soil, sand is a one type of cohesionless soil। So in a consolidation apply to cohesive soils only। obviously cohesive होगा तो ही अंदर पानी रहेगा, पानी को पकड़ के रखेगा, so it is applies only cohesive soils only। in a compaction useful primary and construction of earth dam and embankment। ठीक है। compaction कहाँ पे यूज़ होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ डैम एंड एम्बैंकमेंट।
एंड कंसोलिडेशन यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाउंडेशन सॉइल। ठीक है, ऑब्वियसली फाउंडेशन क्या होगा, बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पे, सॉइल पे होगा। सो कंसोलिडेशन इज यूजफुल टू इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाउंडेशन। सो इट इज़ द compact difference between compaction and consolidation.